This Dr. conference will now be recorded. Dr. Bhairav Kulkarni sir and Dr. Atram sir and all the teachers, all the staff, all the PG and UG student and all the faculties, though have been listening for this topic, which is a burning and a current topic. The name of the topic, whatever today's topic is, that is a corona, a global scenario and its management. Nowadays, we know that everywhere in a nook and corner of the world, in the globe, everywhere on the earth, about more than 200 countries are suffering from this viral infection. And everywhere, even illiterate man is telling a corona, corona, and corona. What is corona? First 2-3 months back, we did not think that the corona will be in every video post. तो ये कोरोना जो है ये आवाज आ रहा है सर? मेरी आवाज तो आ रही है सर? आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है सर। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, ओके। तो ये ग्लोबल सिनारियो जो दुनिया में पहला हम अभी ये इतना मैटर है तो कवर करने के लिए ये दिसंबर 19 में जो वुहान सिटी जो है चाइना में, आवाज आ रहा है सर? December 19, वुहान सिटी ऑफ चाइना, ये पहले कोरोना वायरस आइसोलेट हो गया, तो इसलिए इसको कोविड-19 ये नाम क्यों मिल गया? तो कोरोना क्यों बोलते हैं कि कोई एक किंग है, उसका जो क्राउन रहता है, मुकुट रहता है, राजा द मुकुट दसासो, it looks like a crown, so it has been called as a corona. The structure look like a crown of a king, so it is called as a corona. Now we call it the COVID-19. That is a CO is for the corona, V is for the virus, COVID, V is for virus, ID is an inflammatory disease, and 19, that is, it was found in 19, that is the December 19 in China, that is in the Wuhan city. It's a very big city actually. And what happened actually, the patient were having a pneumonia, but they were not responding to the recent treatment, even the higher antibiotics and everything. But the world is alleging that the China did not disclose this matter, even they did not inform it to the WHO, World Health Organization, and they took a time to inform that there are such cases. At that time, any responsible country should immediately inform it to the WHO, but they delayed it. It took minimum 20 days to 1 month, and that period was very crucial. And in that period, when WHO declared, in that period, there were so many flights from the Wuhan to so many countries, Western countries. There were so many countries to the America, Australia, New Zealand, total Europe, and everywhere the flights were going on, the international flights were going on, the domestic flights were going on. And at that time, what happened? This corona actually spread everywhere. If China would have already told to the WHO, it could have been controlled only at the Wuhan, and every country would have banned their international flights to the Wuhan from their country. But actually, this flights went on, and
इटली में तो देर आर 1 लाख चाइनीज वर्कर्स, दे आर वर्किंग इन द गारमेंट सेक्टर. एंड व्हाट हैपन that they are working in the garment sector. They had been to the Wuhan, and Wuhan के बाद जब वो इटली में आ गए, इटली में आने के बाद लोगों ने उनको कुछ तो डिसीज है ये, तो उनको थोड़ा सा डिसोसिएट कर दिया था. तो फिर इटली के लोगों ने अरे चाइनीज लोगों का स्वागत करना चाहिए, इसलिए हग द चाइनीज ये एक मोमेंट शुरू किया. हग द चाइनीज, दे स्टार्टेड हगिंग द चाइनीज पीपल, उनको झप्पी मारना. और इससे क्या हुआ, इटली के लोगों में ये संक्रमित हो गया, उसका इन्फेक्शन हो गया, वो भी एक्टिव हो गए. और इसलिए दुनिया में इटली सबसे आगे, पहला जो चाइना के बाद सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 पे गया, वो दैट कंट्री वाज द इटाली. दैट इज द मीलान एंड अदर सिटीज ऑफ द इटली, दे वेंट वेरी अहेड. देन इटली के बाद अमेरिका, स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, they all this country had a lot of patients. Now America, the one of the best medical facility where they are available, the America, the death toll has crossed the 1 lakh, and that is a very serious thing for the world. It's a very serious thing that America has crossed today 1 lakh death of a corona, and which is a highly well equipped hospitals and all the medical facilities, everything. Though Americans are having, they have crossed the 1 lakh death, and there are about 9 lakh cases, active cases of the corona, COVID-19. So so it has crossed. Video pause आ रहा है, ऐसे बोलते रहे. तो whenever what happened, so now it is in about 200 countries of the world. So in the 200 countries of the world, it means it's a pandemic. जो Ayurveda has described it as a Janapadodhosa, like it is a pandemic. जैसे पहला ये एंडेमिक था, फिर ये एपिडेमिक बन गया, फिर ये पैंडेमिक बन गया. तो अभी ये पैंडेमिक है. पैन का मतलब कंप्लीट, it has occupied the complete globe, so it is a pandemic. No beds for old people more than 60 in Italy. इटली में तो 60 के आगे का है, तो वो बोल रहे हैं कि आप घर में ही रहो. तो शायद पेशेंट घर में भी मर जा रहा है, ऐसी कंडीशन इटली में हो गई. बेड्स आर नॉट प्रॉपर, बेड आर इनसफिशिएंट इन द इटाली. दैट इज द प्रॉब्लम. In the last stages, what is happening, that the patient is on the ventilator and he is gasping for the air. One doctor was crying that what was happening, that the doctors were giving the sedative injections to the patient, and the patient had a death. So that was the thing, that they were giving the sedative injections to the patient lastly, because there is not still proper treatment. And at that time, in the last stage, patient on the ventilator, and the doctors were giving the sedative injections intravenously, and the patient used to die. So that was the scenario. Even we know that the Queen Elizabeth, that is the England's queen, and even the Prime Minister of the England, that is the Boris Johnson, they also suffered from the corona. They were the corona positive. The Boris Johnson, Prime Minister, was in the ICU, and then now they both are now corona negative, and they are now they have started their work. One German minister, due to this over pressure, how to control or manage the corona, he committed a suicide due to the pressure. Western countries so far, highly medically well equipped, could not combat America. That is the corona. That is actually a tyranny. नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, जो सार्स जो हम बोलते हैं, जैसे सार्स, दैट इज द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है. ये सिंड्रोम में जिधर देयर आर मेनी साइंस एंड सिम्टम्स, दैट कंडीशन वी कॉल द सिंड्रोम, जस्ट लाइक द एड्स. एड्स वाज एक्चुअली आइसोलेटेड बाय द रॉबर्ट गैलो, फर्स्ट इन द वर्ल्ड. लाइक दैट एड्स अभी 40 साल चल रहा है, फिर भी एड्स के लिए एग्जैक्ट वैक्सीन नहीं है. फिर भी एड का जो स्पीड ऑफ
इन्फेक्शियस स्पीड है, जो संक्रमण करने का जो रफ्तार है, ये एड्स का इतना नहीं है। और एड्स के लिए क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है मेनली, वो 2-3 ये है। लेकिन यहाँ तो संक्रमण होने का जो चांसेस है ये वेरी हाई इन दिस कोविड-19। अभी तक तो स्वाइन फ्लू आ गए, बर्ड फ्लू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, सार्स है, कोरोना आ गया। तो ये कोरोना के बारे में हमने जब दुनिया में जब देखा, ये कॉमन जो सिम्टम्स है इसके, तो दैट इज अ टेम्परेचर। आप तो देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पर लोग आ रहे हैं, इधर उधर लोग आ रहे हैं, लोगों का थर्मल स्कैनिंग करते हैं और उनका टेम्परेचर वो थर्मल स्कैनर से हम ले रहे हैं। ये थर्मल स्कैनर से वी आर टेकिंग देयर टेम्परेचर बिकॉज वी शुड नॉट टच दैट फेलो, सो द वी आर यूजिंग द थर्मल स्कैनर। और जिसको ज्यादा बुखार है उसको ही पहले, जिसको बुखार नहीं है उसको छोड़ा गया घर को, उसको क्वारंटाइन भी पहले पहले किया नहीं था। देन आफ्टर टेम्परेचर, जो बुखार है यही हाई ग्रेड फीवर रहता है, दैट इज 102-103 डिग्री सेल्सियस। देन कफ, नॉन रिस्पॉन्डिंग टू द एंटीबायोटिक्स। जो कफ है ये एंटीबायोटिक को कोई भी रिस्पॉन्ड करता नहीं। और ये जनरल कफ जो है, दिन भर भी खांसी है, इसका मतलब एवरी कफ इज नॉट इन कोरोना। द कफ, ये जो कफ है ये अलग तरीके से कफ महसूस होता है, इसमें बहुत सारा दर्द होता है और पेशेंट पूरा कफ के लिए उसको एब्डोमिनल पेन भी हो जाते हैं और ही इज गास्पिंग फॉर एयर एंड दैट कफ ऑफ अ कोरोना। Then very common another symptom, that is the breathlessness, श्वासकष्टता, or it is also called as a dyspnea, difficulty in the breathing. तो difficulty in the breathing, temperature and cough, ये तो मेन पहले सिम्टम्स मिल गए। अभी अभी तो एक एक सिम्टम ऐड हो रहे हैं। कोई कंट्रीज में तो एनोस्मिया जो पेशेंट को जो कोई ऑल्फैक्सेशन है, ऑल्फैक्टरी सेंस है, जो गंध है, ये लेने में वो असमर्थ हो जाता है। ही इज अनेबल टू टेक द एक्चुअली द इवन द स्मेल ऑफ द फ्लावर, दैट इज एनोस्मिया। ये एनोस्मिया भी बहुत सारे पेशेंट में आजकल देखने को मिल रहा है। डिस्पेप्सिया भी आजकल ये डेवलप हो गया है बहुत सारे कंट्री में। डिस्पेप्सिया, मैं जो खा रहा है उसका टेस्ट ही मुझे नहीं समझ रहा है, जैसे अरुचि बोला है डिस्पेप्सिया को आयुर्वेद में जो। और कई पेशेंट में डायरिया भी आ रहा है। तो ऐसा ये मेन तो है टेम्परेचर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस, एंड बाकी ये एनोस्मिया, डिस्पेप्सिया एंड डायरिया, ये भी इसमें ऐड हो गए। ऐसे कुछ साइंस इसमें ऐड हो रहे हैं। ये कोरोना की मॉर्फोलॉजी है, ये आरएनए वायरस है। दिस इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एंड इट इज अ रैप्डो वायरस। जो virus is the last entity between the living and the non-living. We know that, we have learned it even in our 12th science. That is so the virus is a non-living one, but इसका host है जो human body। तो जब आदमी ही कोरोना के कांटेक्ट में आएगा, ये बाहर घूमेगा, इधर उधर जाएगा, कोरोना के पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, और उसको एक बार, या कोई सरफेस पे कोरोना है, उधर हमारा हाथ लग गया, वही हाथ हमारा मुंह को या आंख को या नोज को लगता है, तो ये कोरोना हमारे शरीर में एंट्री करता है, हमारे बॉडी में एंट्री करता है। बॉडी में एंट्री करता है तो वो उसका जो रिसेप्टर है उधर वो बाइंड हो जाता है, और वो बाइंड होने के बाद उसके कॉपिंग शुरू हो जाते हैं। वो खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, जैसा बैक्टीरिया करेगा वैसा ये खुद का खुद रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। उसका रेप्लिकेशन जो है वो बाइंडिंग होने के बाद, तो इसका जो आज तो जो हमें जो देखा है, दैट इज द होस्ट ऑफ द कोरोना वायरस, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द होमो सेपियंस, एंड सो वी कॉल दिस इज एज जूनोसिस। जूनोसिस, जू इज एनिमल, जो एनिमल से मैन को, दैट इज ह्यूमन बीइंग को जो जो डिसीज ट्रांसमिट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं जूनोसिस। जो स्वाइन फ्लू था वो भी जूनोसिस था। चिकन गुनिया हो या डेंगू हो, ये मॉस्किटो से आदमी को आ गया।
तो ये ज्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन है, ये जूनोसिस है, दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जू, दैट इज द एनिमल टू मैन। ऐसे डिसीज सिटाकोसिस एंड ऑल, दैट इज द पैरेट टू ह्यूमन एंड ऑल, ये पहले भी आए हैं। तो कोरोना ये हमने देखा है, उसका मेनी कॉपीज या फिनोटाइप तैयार होता है और उसका ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन होता है। आज अगर 1 लाख कोरोना है तो दूसरे मिनट में उसके 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख, 1 करोड़ के 2 करोड़, ऐसा ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन से ये बढ़ता जाता है। इसके जो पैथोजेनेसिस है, ये कोरोना कैसे हमारे बॉडी में होता है, उसके जो थेरीज है, उसमें थेरी है, पहला तो वो सभी लोगों ने बोला कि ये न्यूमोनिया है, ये न्यूमोनिया है। लेकिन ये जो न्यूमोनिया है, इसमें बायलैटरल न्यूमोनिया मिलने लगा ज्यादातर केसेस में देयर वाज अ बायलैटरल न्यूमोनिया। जनरल जो न्यूमोनिया होता है वो पहला एक लंग को होता है, लेफ्ट लंग या राइट लंग, देन वो स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ये बायलैटरल न्यूमोनिया ये स्टार्टिंग से होने लगा और उसका जो सीटी स्कैन जब करने के बाद उसका जो अपीयरेंस था, दैट वाज अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये भी था, एंड दैट वाज अ बायलैटरल। तो ये न्यूमोनिया भी है या नहीं, ये भी देयर वाज अ एम्बिग्विटी बिटवीन द साइंटिस्ट। फिर दूसरा एक थ्योरी आया कि ये एब्सोल्यूट न्यूमोनिया भी नहीं बोल सकते, तो डीआईसी एक थ्योरी आ गई, डीआईसी दैट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, दैट इज द डिसेमिनेटेड। ये क्या है, आपको जियो नंबर का प्लान आज समाप्त हो गया। ये जो डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, दैट इज कोएगुलेशन मीन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या हो रहा है कि ये इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक दैट इज अननोन इटियोलॉजी। हमारे बॉडी में जो ब्लड का कोएगुलेशन सिस्टम है, ये कोएगुलेशन सिस्टम में ये पैथोलॉजी ऐसी क्यों हो रही है, यही समझ नहीं रहा है। इसको ही मॉडर्न में इडियोपैथिक बोलते हैं या आयुर्वेद में इसको यदृच्छा बोलते हैं। तो ये समझ नहीं रहा है कि हमारे लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहे, जो कोई इटाली में, स्पेन में, ब्राजील में जो जो जिनका डेथ हो गया कोरोना से, उनका डेथ होने के बाद जब ऑटोप्सी किया गया, पोस्टमार्टम उनका जब किया गया, ये पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के बाद ये समझ में आ गया कि बहुत सारे पेशेंट के लंग्स में देर आर थ्रोम्बोस और इवन दे आर इन द कैपिलरीज। सो ये माइक्रो कोएगुलेशन होने लगा है। तो माइक्रो कोएगुलेशन जब हो जाता है तो देयर विल बी अ थ्रोम्बोस, एंड एक बार थ्रोम्बोस, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, तो अगर वो बायलैटरल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया या वो एक आधा थ्रोम्बोस हार्ट में जाता है, तो बहुत सारे कोरोना से पेशेंट हार्ट से भी मर गए। बॉम्बे में एक केस थी कि उसको कल डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन 1 डे बिफोर उसको हार्ट अटैक आ गया। तो दैट वाज नथिंग बट द डीआईसी, दैट इज द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये कोएगुलेशन से क्लॉट फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होता है, और ये थ्रोम्बोस जो है ये लंग्स एंड हार्ट या वाइटल ऑर्गन्स का एब्सोल्युटली जो ब्लड सप्लाई है ये ब्लॉक कर देता है। पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अचानक बहुत सारे पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। ये तो हार्ट के डिसीज भी कोमॉर्बिडिटी में आते हैं, आपको मालूम ही है। तो ये कैपिलरीज में भी कोएगुलेशन हो रहा है, ये एक थ्योरी है। अनदर थ्योरी ये जो है कि ये कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो इट अटैक्स द हीमोग्लोबिन, it attacked the hemoglobin. Now you know that the hemoglobin is present in the RBC. और hemoglobin बनता कैसा है? That is the 2 alpha chains and the 2 beta chains. So coronavirus attacks on the 2 beta chains. So ये 2 बीटा चेन को अटैक करने के बाद हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन गेट डिग्रेडेटेड, और हीमोग्लोबिन का ही फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट द O2, that is it will form the oxyhemoglobin and it will transport the carbon dioxide, that is the carboxyhemoglobin. तो ये अगर डिग्रेडेशन ऑफ द दोनों बीटा चेन और 2 अल्फा चेन से हीमोग्लोबिन बनता है, और अगर ये दोनों बीटा चेन पर ये कोरोना अटैक कर रहा है, ये जब ये थ्योरी आ गई, ये पैथोजेनेसिस की और एक थ्योरी आ गई। ये वायरस तो नया है दुनिया के लिए, इसलिए एक एक पैथोजेनेसिस की थ्योरी आ रही है।
और इससे हमें समझ रहा है कि ये हीमोग्लोबिन को बीटा चेन्स पर अटैक करता है, उसको डैमेज कर रहा है, और उससे क्या होता है, हीम और ग्लोबिन, जो ग्लोबिन है, प्रोटीन तो बॉडी में ही फिर रिसाइकल हो जाता है, और जो हीम है उसका प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो है, जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, वो जो है वो लंग में जाता है, और लंग में अल्वियोलर को डैमेज करता है, अल्वियोलाई को। ब्रोंकियल ट्री का लास्ट, ये तो आपको मालूम है, दैट इज ब्रंच ऑफ ग्रेप्स, लाइक दैट इज ग्रेप्स, दैट इज लाइक अल्वियोलाई, वो अल्वियोलर माइक्रोफिश को भी डैमेज करता है। और ये डैमेज करने के बाद जो आयरन है, हीमोग्लोबिन का आयरन है, आयरन अगर हीमोग्लोबिन ही डिग्रेड होता है तो देयर विल बी ए डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह ये अटैक ऑन द बीटा चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसी से हाइपोक्सिया हो रहा है, या हाइपोक्सिमिया हो रहा है, और इसीलिए पूरे बॉडी में हमारे हाइपोक्सिया होता है। और ये हाइपोक्सिया होने के लिए वजह से क्या होता है, बॉडी को एकदम SpO2 लेवल, दैट इज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये एकदम डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल पर्सन का तो 100% सैचुरेशन रहता है, या 95% सैचुरेशन रहता है, लेकिन इसमें एकदम हाइपोक्सिया, SpO2 कम कम होने लगता है। तो कोई कोई डॉक्टर ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर से उसका उसका SpO2 देखते रहो, और अगर ये SpO2 कम कम हो रहा है, अभी ये 70 हो गया, फिर 60 हो गया, देन 50 हो गया, तो उसको इमीडिएट एडमिट कर दो। तो डेली पल्स ऑक्स से आप 3-4 बार उसको चेक करो। आजकल तो पोर्टेबल पल्स ऑक्स मीटर आ गए हैं, जो थंब या कोई फिंगर को लगा देते हैं, तो हमें इमीडिएटली उसका SpO2 लेवल समझ जाएगा। और डेली यू चेक द ससेप्टेबल केसेस विद द पल्स ऑक्स मीटर, ये भी बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो इसी से क्या हो रहा है, ये डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से सीवियर डिस्निया हो रहा है, एनोक्सिया हो रहा है, फिर पेशेंट को O2 देना पड़ता है, फिर उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, और वेंटिलेटर से मोस्ट ऑफ द पेशेंट का डेथ होता है। लेकिन हमारे इंडिया में भी और इसमें ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत आज तक नहीं लग गई है पेशेंट के लिए। वेंटिलेटर्स हैव नॉट बीन मोर रिक्वायर्ड, वेंटिलेटर बहुत कम पेशेंट में यूज किया गया। सो वेरी फ्यू पेशेंट वे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर। और एक पैथोजेनेसिस इसका आ गया। ये पैथोजन ऐसा जिसके बारे में हमने देखा है, दैट इज जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म है, दैट इज DIC, दैट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अभी हम ये पैथोजेनेसिस के और भी थेरीज आ रहे हैं, जो आपने तो पहले ही देखा कि वुहान में जो बैठ के सूप भी खाए था, दैट इज चमगादड़, जो हिंदी में बोलते हैं, जिसको वटवागुड़ हमारे मराठी में बोलते हैं। तो ये चमगादड़ है। तो ये जो है, इसमें ये उसका सूप वगैरह पीना, ये वुहान में एनिमल का बहुत जो मार्केट है, अभी तो बंद कर दिया है ये मार्केट को। तो ये जो चमगादड़ से ये कोरोना का जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये ह्यूमन में आ गया। ये एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, जैसा एड्स में एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी दिया था, मंकीज इन अफ्रीका, मंकीज टू मैन, ये आ गया, दैट इज अगेन जूनोसिस। मंकी का ब्लड किसी ने एफ्रोडिजियक के लिए ये ब्लड अपने IV इंट्रावेनस में ले लिया, और ये मंकी के वजह से अफ्रीका में एड्स हो गया, उधर से वो अमेरिका में गया, और वैसे वो भी पैंडेमिक हो। तो इसी तरह अभी जो ट्रीटमेंट एंड R&D के बारे में हम देखेंगे कि ग्लोबली ये इसका क्या चल रहा है। तो ये वैक्सीन के ट्रायल बहुत चल रहे हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ह्यूमन ट्रायल शुरू भी हो गए, फिर USA, इजराइल, इंडिया, थाईलैंड ने परसों ही मंकीज पर ये वैक्सीन के ट्रायल शुरू किए। मेन प्रॉब्लम in the developing of the vaccine is that it is a highly mutant virus. इसका म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है, और वो अपना जो RNA का जो चेन है ये बदल देता है, ये म्यूटेट हो जाता है। जो म्यूटेशन की थ्योरी ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने जो पहले ही बता दिए थी। तो सडन चेंज
इन अ डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर, दैट इज अ म्यूटेशन। तो ये म्यूटेट करता है। तो इंडिया में तो उसको 10 म्यूटेशन के स्ट्रेन मिल गए और दुनिया भर में इसके 30 म्यूटेशन के स्ट्रेन मिल गए। अभी मुझे आप ही बता सकते हैं कि इतना अगर ये म्यूटेट हो रहा है तो कौन से इसमें वायरस के लिए वैक्सीन बनाना है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत से कंपनी के सामने। तो दैट इज द म्यूटेशन इज द मेन प्रॉब्लम फॉर हमारा जो चेन्नई में दैट इज CSIR, दैट इज सेंट्रल फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके डायरेक्टर है राकेश मिश्रा। ही हैज आइसोलेटेड 10 स्ट्रेन्स फ्रॉम द बैट्स फ्रॉम द वेरियस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये बैट्स में उसको भी 10 स्ट्रेन इंडिया में मिल गए। राकेश मिश्रा जो चेन्नई के CSIR दैट इज सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर है। फिर ICMR का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, I luckily got a chance when I was doing MD at the Tilak at Pune. He was the director of NARI, that is National AIDS Research Institute. I could work with him, and now he's the fellow from the Pune. Now he's heading the epidemiology department of the ICMR, Indian Council of Medical Research. तो दुनिया में एकदम एक आपको मालूम है कि ये HCQH की डिमांड बहुत बढ़ गई। 1940 की दवा HCQH, दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट, ये तो सिंकोना बार्क से निकाला जब मलेरिया है। रोनाल्ड रॉस ने इसको ये किया था। PVAX है, POL है, इसके लिए ये सिंकोना बार्क से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट। तो इसका डिमांड इतना हो गया कि इवन डोनाल्ड ट्रंप का इतना भरोसा था कि ये बोला कि ये दिस इज अ मैजिक ड्रग, दिस इज अ गेम चेंजर ड्रग, और ये पूरा कोरोना का गेम चेंज कर देगा। उसका एक ऐसा फार्माकोडायनामिक्स ऐसा था कि ये जो बाइंडिंग साइट है, रिसेप्टर एंड बाइंडिंग, जहां रिसेप्टर को कोरोना का वायरस बाइंड होता है, वहां ये क्या करता है, जिंक का एक मॉलिक्यूल छोड़ देता है, दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट। और इससे वो क्या होता है, रेप्लिकेशन उसका कम हो जाता था। लेकिन इसके HCQH के प्रॉब्लम क्या आने लगे, अमेरिका में तो HCQH प्लस एजिथ्रोमाइसिन दैट इज एंटीबायोटिक, ये तो एकदम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही देना शुरू किया था। हमारे देश के पंतप्रधान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने बहुत सारे, ब्राजील में जब हमारे HCQH के प्लेन पहुंच गए, तब ब्राजील का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो बोले कि जैसे हनुमान ने संजीवनी लाई वैसे इंडिया ने हमारे लिए लाई। लेकिन आज ब्राजील में कोई भी एक भी डॉक्टर HCQH नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है कि दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम साइड इफेक्ट, और इट मे बी ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दैट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड प्योर इंटरवल, कभी ये लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, कार्डियक अरिथमिया हो रहा है, और लोग कार्डियक मायोकार्डियल इंfarct से भी मर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ है, कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन उपद्रव उसके कार्डियक पर हो रहा है। तो उसका HCQH का अभी थोड़ा ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये बंद कर दिया। आइवरमेक्टिन, ये तो आपको मालूम है एंटी हेलिमेंथिक ड्रग था, इसका भी यूज किया गया कि आइवरमेक्टिन से भी ये ठीक हो जाएगा, ऐसा भी। फिर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आए। प्लाज्मा जो कोरोना जिसको हुआ है, कोरोना हुआ है और कोरोना से ठीक हुआ है, इसका मतलब उसके बॉडी में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है, और ये एंटीबॉडीज जिसको कोरोना हुआ है उसको अगर दिया उसका प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा देने के बाद उसको भी ये उसके एंटीबॉडी मिलेगा, और ये blood पाएगा, it will fight against the corona, and like that the plasma therapy, but plasma therapy is not also still accepted all over the world. It is not all over the world has been called as a safe, as well as it is not been used in the world still. Somewhere they are using the plasma therapy only. इंफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट दैट जो माइक्रोकोएगुलेशन होता है, इसमें कोई कोई बोल रहे हैं कि आप एंटीकोएगुलेंट भी दे दो, दैट इज फॉर एग्जांपल यू कैन गिव द एस्पिरिन, यू कैन गिव द क्लोपिडेग्रल, और दैट इज एंटीप्लेटलेट एग्रीवेशन ड्रग।
और ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं, हिपैरिन, कोई इंट्रावेनस हिपैरिन भी हम दे सकते हैं. Generally, we have to avoid the NSAID in the active case of corona, because the NSAIDs they can cause even the respiratory failure. जैसा अस्थमा में NSAID are contraindicated like that. In India, the main problem was the PEP kit. जितना हमारा population है 130 crore, इतने डॉक्टर्स है, इतने नर्सेस है, इतना मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ वर्कर्स है, फार्मासिस्ट है, इनको पीईपी किट या पुलिस को या नर्सेस को, ये बाकी लोगों को पीईपी किट नहीं मिल रहे. पीईपी किट महंगे थे, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था. इसमें हमारा पहला 1 महीना तो उसमें गया. नाउ 2 लाख पीईपी किट हमारे देश में बन रहे हैं, और N95 मैक्स मास्क भी डेली आज 2 लाख बन रहे हैं. तो 2 लाख मास्क, N95 mask for the doctors working in the corona ICU, and PEP kits for them. Again, the paucity to use 130 crore population. Definitely the actually paucity of the beds. इतने लोगों के लिए बेड क्या, अभी देखो बंबई में ऐसा है, कल तो रजवाड़ी अस्पताल बंबई में ऐसी एक केस मिल गई कि एक पेशेंट को एडमिट कर दिया है, इसके नेक्स्ट बेड में एक डेड बॉडी 12 घंटे के लिए रखी गई थी, क्योंकि उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा था. इसका डिस्पोज कौन करेगा, इतना लोड आ गया है, डॉक्टर्स भी फटीग हो गए, एंजाइटी हो गई है लोगों को, और वो औदासीन्य उनको हो गया है. तो ऐसे कंडीशन में अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज कॉल्ड, दे हैव आस्क्ड फॉर द केरला गवर्नमेंट देयर हेल्प, दैट you send that your nurses and your doctors. We know that the Keralian nurses, they are worldwide very famous for their dedicated duty. So now we have asking, the Maharashtra government is asking for the Kerala government the important help. डेफिशिएंसी ऑफ बेड, क्वारंटाइन सेंटर की भी डेफिशिएंसी, किधर पेशेंट को क्वारंटाइन करना है. अभी तो 14 दिन का बंबई में 10 दिन ही क्वारंटाइन कर दिया है. तबलीग मरगज भी जो हो गया, वो तमिलनाडु में 80% से ज्यादा जो केस है, दोज आर रिलेटेड विद द तबलीग मरगज. ऐसे बहुत सारे स्टेट में भी ये हो गया, वो भी थोड़ी सी गलती हो गई और इससे भी ये इसका स्प्रेड हो गया. फिर माइग्रेशन ऑफ द लेबर, दैट वाज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, दैट इन 25 lakhs and 26 lakh people are going Delhi, going to the Uttar Pradesh, going to the Bihar, going to the Chhattisgarh, going to the Jharkhand. तो ये माइग्रेशन जो चल रहा था, आप देख रहे थे, हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे. देयर वाज नॉट अ सोशल डिस्टेंसिंग, देयर वाज नथिंग, एनी नॉर्म्स वेर फॉलोड regarding the corona, and that also the main cause of the increase in the cases of the corona. So in every science, even in the Ayurveda भी बोलता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, that is the prevention is a better than cure. तो लॉकडाउन में 4th लॉकडाउन अभी तो शुरू है, तो ब्रेकिंग द चेन ये हमारा मेन. हमने जो लॉकडाउन शुरू किया वो शुरू किया, इट वाज अ वेरी, even WHO appreciated India as lockdown. ये हमने शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है. और ये लॉकडाउन में कोई दिक्कतें आ गई, ये लॉकडाउन कोई बोलता है अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन ये लॉकडाउन हम नहीं करते तो हमारे कई और 10 लाख केसेस भी बढ़ जाते थे. तो इसलिए ये लॉकडाउन से डेफिनेटली चेन ब्रेकिंग में मदद हो गई. और हम सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में इमीडिएट नहीं गए, इसको बहुत टाइम लिया, ये लेंदी हो गया, और हम इमीडिएट ये कम्युनिटी में भी नहीं गए, कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं गए. तो आपको प्रिवेंशन में ये लॉकडाउन ये एक प्रिवेंशन मेजर ही है, दैट इज द ब्रेकिंग चेंज. दैट इज वर्ल्ड WHO अप्रिशिएट इंडिया. सोशल डिस्टेंसिंग, अभी तो पहला 1 मीटर मानते, तो अभी 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग दुनिया भर में ये WHO ने बोल दिया है. हैंड वॉशिंग, आपको तो ये सब मालूम है, ये सोप एंड वाटर एंड 80% अल्कोहल बेस्ड ये हैंड सैनिटाइजर्स वी हैव टू यूज. मास्क शुड बी कंपलसरी. घर में ठीक है, लेकिन जब आप घर के थोड़ा भी बाहर पड़ते तो आपको मास्क तो यूज करना पड़ेगा.
अपने खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, और उसका स्प्रेड जो है, फैलाव जो है, ये रोकने के लिए आपको यू हैव टू कंपल्सरी यू हैव टू यूज द मास्क. And one thing you remember, tell your patients, my all the doctors, respected doctors, that you tell the patient that never use the mask at the time of exercise. Some people use the mask at the time of exercise, time of running, time of brisk walking, and actually what happened, some of them they died because of the hypoxia. जब हम फिजिकल एक्टिविटी जबरदस्त करते हैं, एक्सरसाइज हेवी कर रहे हैं, तो ऐसा मास्क यूज करेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा. तो ये मास्क एक्सरसाइज के टाइम यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए. डोंट टच हैंड टू द फेस, दैट इज द माउथ, आईज एंड नोज, ये भी प्रिवेंशन ही है, असेप्टिक प्रिकॉशन जो है. फोमाइट जो है ये तो एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है, फूडबोर्न भी इन्फेक्शन नहीं है. तो एयरबोर्न है, ये क्या है, थोड़ा इसका वेट ज्यादा है, तो ये 3-4 मीटर में ही कोई सरफेस पे लैंड हो जाता है, उसको ही हम फोमाइट बोलते हैं. तो ये एयरबोर्न तो नहीं है. अगर एयरबोर्न होता तो बहुत सारे केसेस, इससे भी 25 गुना केसेस ज्यादा मिलते हैं अगर ये एयरबोर्न होता तो ये लाइफ वेरीज ऑन डिफरेंट सरफेसेस. जैसा कि ये जो कॉपर है, कॉपर पर ये 4 घंटा ही रहेगा. जो पोरस कॉटन का कपड़ा है उस पर भी उसका लाइफ कम है, लेकिन ग्लास पर 7 डेज है, लकड़ी पर, फर्नीचर पर 7 डेज है. ऐसा हर एक सरफेस पर इसका लाइफ का स्पैन जो है कोरोना वायरस का, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सरफेसेस. और स्टील में भी, स्टील का सरफेस है, इस पर 7 डेज ये जिंदा रहता है. तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए. इसलिए बर्तन भी अलग अलग यूज करना चाहिए. होम क्वारंटाइन में अगर पॉसिबल है तो टॉयलेट्स है, वॉशरूम्स है, ये अलग अलग आप यूज करेंगे, so that will be very better for the prevention of this disease. Try to learn with the corona now. We have to learn with corona, we have to live with the corona. corona तो ये लंबी रेस है. ये तो आज कोरोना है और कल 1 महीने में जाने वाला है, ये तो नहीं है, आप सबको भी ये मालूम है. तो एक ही अच्छी बात यह है कि डेथ रेट इसका बहुत कम है. इन इंडिया द मुंबई डेथ रेट 3% है, अदर जगह बम्बई के 1% डेथ रेट है. लेकिन बम्बई तो ये ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया. बम्बई में 50,000 से ज्यादा केस हो गए, और बम्बई ये 1 नंबर में मास्को है ग्लोबल हॉटस्पॉट में, और 2nd नंबर में बम्बई है ग्लोबल हॉटस्पॉट में. लेकिन मास्को में थोड़ा सा, मास्को से हमारा जो ये है डेथ रेट है, मास्को थोड़ा सा अच्छा है. अभी हमें और एक जो आपने नाम सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी जो है, ये हर्ड इम्यूनिटी यानी ऐसे भी कोई वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपके ये हर लोगों में 70 या 80% लोगों को कोरोना होना चाहिए. एक बार कोरोना होने दो उनको. जैसे मीजल होता है, उसके बाद फिर मीजल नहीं होता, क्योंकि उसके एंटीबॉडी उसके बॉडी में तैयार हो जाती है. दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट में भी है बैक्टीरिया और इट में भी है वायरस, उसके 2 पार्ट रहते हैं. वन इज दैट इज द टॉक्सिनोजेनिक पार्ट एंड अनदर इज द एंटीनोजेनिक पार्ट. ये जब एंटीजन जब कोरोना का अंदर जाता है, वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करता है. जरूर वो कोशिश में लगता है और एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है. 21 डेज में ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. और जब 100 पेशेंट में 70 पेशेंट ये इन्फेक्ट होके अगर क्लियर हो जाते हैं, ये हर्ड इम्यूनिटी है. तो ये हर्ड इम्यूनिटी भी हमारे ये इतने बड़े पॉपुलेशन में अगर डेवलप हो जाएगी, तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी से भी ये लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी. जैसे हमारे मीजल्स में आई थी, हमारे बाकी बहुत सारे वायरस डिसीज आ गए इंडिया में आज तक, इसमें हमें हर्ड इम्यूनिटी ने ही बचाया है. वैसे हर्ड इम्यूनिटी भी बॉडी में डेवलप होना ये इम्पोर्टेंट है. अगर हम वी हैव अ स्टिपुलेटेड टाइम इन दैट वी हैव टू कवर. जो आयुर्वेदा का जो पार्ट है उसके इसमें ये तो आगंतु व्याधि चरक ने जो बोला है, ये आगंतु व्याधि
जैसा ये भूत, चरक ने इसको भूत बोला है। भूत चरक शारीर एक में उसका भूत ऐसा वर्णन है। भूतः स विषक्रिमया, दैट इज कोकाई बैक्टीरिया, इसको भूतः स विषक्रिमया ये चरक जी ने, आचार्य चरक ने बताया है। और सविष पिशाच, सविष पिशाच, इसके बारे में पिशाच को बोला, ये अदर्शनाश्च है, इसका दर्शन देता नहीं, ये दिखता नहीं है। कोरोना तो हमें दिखता नहीं है, और ये अति सूक्ष्मत्वात् ये भी बोलते हैं। तो ये पिशाच है, सविष पिशाच है, तो ये वायरस है, ये कॉन्टेजियस फीवर है। काश्यप संहिता में ये बोला है संसर्गजन्य, ये दाह ज्वर व्याधि है, खिलस्थान में देखा है, बोला है, पेज नंबर 234/91। सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी ये उसका रेफरेंस आया है, चैप्टर 39/61। तो ये दाह ज्वर संसर्गजन्य है। इसमें हम कोई डॉक्टर एस.आर. जोशी जो हमारे डीन थे और मेरे टीचर थे, सांगली वसंत दादा मेडिकल कॉलेज, ही वाज द डीन ऑफ कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल का। तो ये सहदेवी मूल जो उनको भी ये आयुष के लोगों के साथ, स्कॉलर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की तो उनने इनको भी इनवाइट किया था। उन्होंने एक सहदेवी मूल, जो सहदेवी मूल है, इसका पंचांग भी यूज किया उन्होंने। दैट इज वेरोनिया सेनेरिया, ये इसकी बोटेनिकल नाम है। ये कंपोजिट फैमिली के सहदेवी मूल है। इसमें थोड़ा सा कुटकी, दैट इज ट्राइकोराइजिया कोरोसा, ये कुटकी भी थोड़ा ऐड किया, पर वचा भी थोड़ा स्मॉल डोज में वचा दिया। और जो बॉइल्ड राईस का जो वॉटर आहे, तांदळाचं धुवण ज्याला आपण म्हणतो, हे मिळून त्याचं आता त्याची पावडर करून हे सगळं 3 हॉस्पिटलमध्ये, केएलई बेलगाम, यशवंत आयुर्वेद कॉलेज कोडोली आणि तिसरं एक हसनचं कॉलेज आहे, या 3 ठिकाणी या सहदेवी मूळचं ट्रायल्स आता सुरू आहे। आणि या ट्रायल्स मध्ये लक्षात येत आहे की त्या पेशंटचे IgM अँटीबॉडीज, इम्युनोग्लोबिन M, IgM अँटीबॉडीज वाढत आहेत। आता त्या IgM अँटीबॉडीज कशा वाढतायत हे आपण अगदी आपल्या सेटअप मध्ये, ह्या सेटअप मध्ये बघू शकतो। तर त्या कशा बघायच्या ते पण आय विल टेल यू इफ टाइम परमिट्स। तर त्या राधानगरीच्या जंगलामध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, इथं ही वनस्पती भरपूर प्रमाणात मिळती। ही चूर्ण स्वरूपामध्ये, कारण ती तिक्त रसात्मक असल्यामुळं त्याला थोडासा मधाचा अनुपान, आणि यांना IgG अँटीबॉडीज वाढताना आता सापडत आहेत। आता याच पद्धतीनं आपण आयोडीन डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत अँटीव्हायरल, दॅट इज असायक्लोव्हिर, हे मॉडर्न मध्ये आजही याच्या बाबतीत वापरलं जात आहे, जे एड्सला वापरलं गेलं। आयोडीन एंटर द सेल व्हायरस, आणि त्यामध्ये एंटर करून त्या व्हायरसचा डेथ करतात। याच्यामध्ये चिल्स नाही आहेत, म्युटेशन्स आहेत, हे आपण बघितलं। याला जर आपण एरंडस नीरी, जो नागपूर आहे, नागपूरला जे नॅशनल एन्व्हायरमेंट हे आहे, त्यांनी असं सांगितलं की टेम्परेचर वाढल्यावर व्हायरल लोड कमी किंवा व्हायरसचं हे थोडं प्रमाण कमी होईल। पण आता बघा की काल दिल्लीमध्ये 50 टेम्परेचर आहे, त्याच्या आधी 47 आहे। अर्जेंटिनामध्ये टेम्परेचर जास्त आहे, ब्राझीलमध्ये टेम्परेचर जास्त आहे, तरी पण कोरोनाचा पर्सेंटेज काही कमी येत नाहीये। म्हणजे इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग लाईक अदर व्हायरस, दॅट द टेम्परेचर इज इन्क्रीजिंग अँड व्हायरस आर ऍक्च्युअली, द नंबर ऑफ व्हायरस आर डिक्रीजिंग। हे कोरोनाच्या बाबतीत होत नाही। हा स्वित्झर्लंड सारख्या थंड ठिकाणी आहे, दुबई सारख्या 50 डिग्रीच्या वरही आहे, अर्जेंटिनामध्येही आहे, स्पेनमध्येही आहे, आणि दिल्लीमध्ये जिथं 50 डिग्रीच्या वर टेम्परेचर आहे, या ठिकाणी देखील आपल्याला याचं हे बघायला मिळतो। तर माझं एक म्हणजे हे नागपूरचा नीरीचा हा रिपोर्ट आहे। त्याचप्रमाणे आयुषमध्ये एक बालाप्रसाद बडायले म्हणून माझे मित्र काम करतायत, ते एरंडस स्नेहावर काम करतायत। श्वासहर, कासहर अनुलोमक आहे, त्यांना त्याचेही रिझल्ट ते बऱ्यापैकी चांगले आहेत असं सांगतायत। अनुलोम विलोम, कपाल, अग्निसार, योगा यासारखे आपण व्यायाम सुद्धा केले पाहिजेत।
राजीव सूद म्हणून जे डीन आहेत राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, हे सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. आपल्या महाराष्ट्राचे 2 कॅबिनेट मिनिस्टर सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. आता डॉक्टर हर्षवर्धन जे आहेत आपल्या आरोग्य मंत्री, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, हे चेअरमन ऑफ एक्झिक्युटिव्ह बॉडी ऑफ WHO जिनिव्हा होत आहेत. हे एक चांगली गोष्ट आहे की ज्याचा आपल्याला करोनासाठी आणि बाकी आजारांसाठी सुद्धा डेफिनेटली जास्त उपयोग होईल याचा. ते स्वतः डॉक्टर असल्यामुळं तर जास्तच आणखीन त्याचा फायदा होईल. 150च्या वर कंट्रीजनी त्यांना सपोर्ट केला आणि डेफिनेटली चायनाचा जो WHO वर जो जास्त हे होता तो नक्की भारताकडे येईल. त्यामुळे हे मास सॅनिटायझेशन करणं, इवन फार्टिंग, म्हणजे आता काही गोष्टी ज्या आहेत की फार्टिंग म्हणजे ज्या अपानाचा जो गॅसेस हे होत आहेत त्यामधून सुद्धा तो पसरतो असं काही रिसर्च मध्ये आलेलं आहे. इवन सिमेन मध्ये कोरोना सापडला, हेही काही रिसर्च मध्ये आलेलं आहे. फिकल मॅटर मधूनही हा पसरतो. त्यामुळं ओढ्यावर शौच करणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. युरिन, सिमेन, त्यामुळे सेक्स जो आहे, सेक्सच्या सेफ पोझिशन कोणत्या आहेत हे बघायला पाहिजे. इट इज बेटर टू अवॉइड इट बिकॉज हे सिमन मध्ये सुद्धा कोरोना काही जणांच्या सापडलाय जे पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत. तर ऑल दिस आता आपण बघतोय की या लॉकडाऊनमुळे सगळं गंगा यमुना वगैरे शुद्ध झालेले आहेत, वातावरण शुद्ध झालंय, पोल्युशन लेव्हल कमी झाले, त्यामुळे इतर आजार सुद्धा कमी झालेले आहेत. आणि अशा प्रकारे आपल्याला रसायन चिकित्सा तर आपल्याला आयुर्वेदामध्ये द्यावी लागेल. रसायन चिकित्सा दॅट इज रिज्युएशन थेरपी देणं हे तर त्याचं व्याधिक्षमत्व वाढवण्यासाठी. त्यानंतर धातू सारता, त्याचे धातू सार कसे होतील हे बघणं. जसं आपल्याकडे काय सांगितलेलं आहे की प्रमेह निदानामध्ये जे सांगितलंय बघा की विकार विघातक भाव यांचा जेव्हा अभाव असतो त्याच वेळा तो विकार होतो. तसं विकार विघातक भाव जे आहे त्यांचाही या बाबतीत आपण या कोरोनाच्या बाबतीत विचार केला पाहिजे की विकार विघातक जे भाव आहेत त्यांचा अभाव होऊ नये. या दृष्टीने कोरोनाच्या बाबतीत आपण आयुर्वेदाचा विचार हा डेफिनेटली केला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं रसायन चिकित्सा असेल किंवा योगासन असतील, अनुलोम विलोम असेल, कपालभाती असेल, थोडा एक्झरसाइज, डाएटला तर महत्व आहे. आपल्याला पोपई ज्यामध्ये पेपेन आहे, विटॅमिन ए आहे, लिंबू किंवा सायट्रस फ्रूट जे आहेत ते तर आपल्या दृष्टीनं फार मोठे महत्वाचे आहेत. विटॅमिन सी ही अँटी इम्युनिटी, आपली इम्युनिटी वाढवणारी आहे. आणि हे विटॅमिन सी आणि सायट्रस फॅमिली मधले फ्रुट्स आपण, फ्रेश फ्रुट्स आपण खाल्ले पाहिजेत. शक्यतो आपण जे जंक फूड किंवा फास्ट फूड हे कमी खाल्ले पाहिजेत. आणि अशा प्रकारे आपण थोडासा पेशन्स ठेवला पाहिजे. प्रत्येकानं जसं शिष्युतांनी सांगितलं की सर्जन शुड हॅव अ लायन्स हार्ट, तसं एक सिंहाचं हृदय आणि एक आपल्यामध्ये हिंमत ठेवूया. आणि एक दिन या भारतानं शक, हुण आणि यांच्या अनेकांची आक्रमण आपण परतावून लावली. आपण अनेक रोगांना, प्लेग पासून सगळ्यांना तोंड देऊन परत भारतीय लोक आज ताठ मानेनं जगामध्ये उभे आहेत. एड्स आला वाटलं सगळ्यांना सगळं काही संपून जाईल, तरी पण एड्स ला सुद्धा मात देऊन आज भारतीय लोक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने टिकून आहेत. आणि जगात आज हे सिद्ध झालेलं आहे जवळजवळ की भारतीय लोक अनेक ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये राहत आहेत आणि त्यामुळे त्यांची प्रतिकारक शक्ती, व्याधी क्षमत्व हे जास्त आहे हे लक्षात आलंय. आणि अमेरिका आणि या लोकांपेक्षा नक्कीच भारतीय लोकांची प्रतिकार शक्ती जास्त आहे, कारण डेथ रेटवरच आपल्याला क्लिअर कट कळतंय. त्याप्रमाणे आपण हारना नाहीये, ये कोरोना को ही हराना है, हे आपलं एम लक्षात ठेवूया. आपल्याला वेळेचा अभाव असल्यामुळं मी थोडासा वेळ जास्त झालाय माझ्या लक्षात झालं बोलण्याच्या या ओघामध्ये, तर मी आपणा सर्वांची थोडा मी वेळ जास्त घेतला. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. आय ट्राईड टू कव्हर द this matter by allopathy and Ayurveda, and I am very much thankful to Ashwin Ayurvedic Medical College, Dr. Lokhande sir, Dr. Bhairav Kulkarni sir, and all the faculty chairman of the Ashwin Ayurved Manchi. I was also a staff of that college. I am very proud of the Ashwin College. There are तुम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम नेहमी घेत असता
आणि सतत हे आदर्श घेण्यासारखं आहे प्रत्येक कॉलेजनी. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद सर. अतिशय उपयुक्त आपलं स्पीच आज या ठिकाणी झालेलं आहे. तर यानंतर काही क्वेश्चन्स असतील आपल्याला तर आपण बाजूच्या टेक्स्ट बार मध्ये आपण विचारू शकता. जरूर सर, जरूर. थँक्यू. सर एक असा क्वेश्चन आला होता की सध्या हा. भारतामध्ये हा. नेमकी स्टेज कोणती आहे? कोरोनाची स्टेज आता सध्या कोणती आहे? कोरोनाची स्टेज आता स्टेज कोरोनाची आता मुंबईमध्ये थर्ड स्टेज आहे, पण बाकी ठिकाणी सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेजच्या मध्ये आहोत आपण. ठीक आहे. मुंबईमध्ये मात्र डेफिनेटली थर्ड स्टेजला गेलेलो आहे आपण. एक तर ते धारावी आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी स्लम आहे. तिथेही एकेका रूम मध्ये 8-8, 10-10 लोक राहत आहेत. अच्छा. ओके सर, थँक्यू. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाच्या डॉक्टर श्यामल निर्मळ मॅडमला विनंती करतो की मॅडमनी या लेक्चरचं कन्क्लूड करावं. डॉक्टर निर्मळ मॅडम प्लीज. डॉक्टर निर्मळ मॅडम आपला माइक ऑन करावा प्लीज. डॉक्टर छापेकर सर आहेत लाईनवर? हॅलो हॅलो हॅलो. डॉक्टर निर्मळ मॅडम, डॉक्टर छापेकर सर. डॉक्टर तारेकर मॅडम लाईनवर आहेत? डॉक्टर तारेकर मॅडम. हॅलो. डॉक्टर तारेकर मॅडम आपण या सेशनचं कन्क्लूड करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतोय. हॅलो, नमस्कार सर. सर ऐकायला येतंय का? ऐकायला मॅडम, आवाज येतंय? येतोय. येस येस, ऐकू येतंय. हॅलो सर, आजचं जे सेशन मी मराठीमध्ये बोलू सर? हा बोला. अच्छा ठीक, काही प्रॉब्लेम नाही. सर, आपण आज जी माहिती दिली COVID-19 बद्दल खूप वास्ट आणि खूप छान होती. संपूर्ण माहिती अगदी समजण्यासारखी होती आणि वास्ट होती. ऐकून खूप छान वाटलं. चांगलं लेक्चर झालं सर तुमचं. त्याबद्दल तुमचे अश्विन आयुर्वेदिक कॉलेज तर्फे तुमचे फार फार आभार. आणि तुम्ही अशीच माहिती परत द्यावी आम्हाला. तुमचे व्याख्यान खूप छान झालं. त्याबद्दल तुमचे महाविद्यालयाकडून, माझ्याकडून, सर्व आयुर्वेदिक कॉलेजच्या विद्यार्थी, पीजी सगळ्यांकडनं तुमचे फार फार आभार. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅडम धन्यवाद. Thank यानंतर आपले प्राचार्य माननीय लोखंडे सर, डॉक्टर लोखंडे सर. डॉक्टर लोखंडे सर. हॅलो डॉक्टर लोखंडे सर. लोखंडे सर आपल्यापर्यंत आवाज येत नाहीये. तर माननीय देशपांडे सरांचे महाविद्यालयातर्फे सर्व विद्यार्थ्यांच्या आणि अध्यापकांच्या वतीने मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आपलं व्याख्यान आणि आपण आम्हा सर्वांना वेळ दिला, आम्हाला योग्य मार्गदर्शन केलं. आज कोविड सारख्या संकटामध्ये सर्वजण असताना आपण नेमकं कसं वागावं किंवा काय करावं किंवा हा आजार कसा पसरतो आहे किंवा या असा आजारामुळे काय काय गोष्टी समाजामध्ये घडतायत किंवा रुग्णांमध्ये काय काय लक्षणं दिसत आहेत असं व्यवस्थित विवेचन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. तर माननीय दीपक देशपांडे सरांना
या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला खूप उत्तम पद्धतीने अतिशय समर्पक दृष्टीने सर्व मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे आणि सर्व उपस्थितांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो आणि हे लेक्चर संपलं असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद. मी धन्यवाद, सर. अंतःकरणपूर्ण आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू.